السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، شب قدر یا یوں سمجھیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی فضیلت کیا ہے۔ اور ایک چیز آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ شب قدر جو ہے، شب قدر بہت اہمیت کی ایک رات ہے اور وہ رات اسی رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے۔ تو میں آج آپ کو شب قدر کی حقیقت، شب قدر کی فضیلت کے بارے میں آج آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کروں گا انشاءاللہ۔ بتاؤں گا شب قدر کیا چیز ہے اور شب قدر کی کیا فضیلت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور شب قدر کے اندر اللہ فرماتے نازل فرمایا ہے، اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے قرآن کے بارے میں کہ یعنی قرآن کو اللہ شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں سمجھیے مہربانی ہے ہم سب کے اوپر کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے قرآن کریم کا ہے، اسی طریقے سے تمام مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت بخشی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راتوں کے اندر شب قدر کی فضیلت کو اللہ نے برتری ثابت کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ اللہ دیکھیے پوچھتے ہیں، اپنے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ آگے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر وہ چیز ہے اور وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر کے یہ رات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پہلی امتوں کی ایج ان کی زیادہ ہوا کرتے تھے، عمر ان کی زیادہ ہوا کرتی تھی، تو ظاہر بات ہے وہ عمر زیادہ ہوگی تو عبادت بھی وہ زیادہ کر لیا کرتے تھے۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عمر 60 سال یا 70 سال جا کر کے پھر ختم ہو جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پہلے کی امتیوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی تو ان کی عبادت بھی زیادہ ہوگی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب تھوڑی سی ہوگی تو ان کی عبادت بھی تھوڑی ہوگی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کی عمر بھلے ہی چھوٹی ہوگی لیکن اگر یہ عبادت کریں گے تو صرف شب قدر کی ایک رات کے اندر اگر عبادت کر لیتے ہیں اور شب قدر حاصل کر کے اگر عبادت کر لیتے ہیں تو گویا کی
83 साल यानी 83 83 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। यह अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है इस उम्मत के ऊपर। यानी एक रात अगर इबादत करते हैं और शब कद्र को अगर पा लेते हैं तो मेरे दोस्तों 83 साल इबादत करने का सवाब एक रात के अंदर आपको मिल जाए। यह एहसान है अल्लाह का इस उम्मत के। सोचिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि इस शब कद्र की रात के अंदर फरिश्ते उतरते हैं और रूहुल कुदुस भी उतरते हैं। रूहुल कुदुस कौन है? अगर रूहुल कुदुस को हम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मानते हैं जो तमाम फरिश्तों के सरदार है, एक सवाल इसके अंदर ये उठता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फरिश्ते हैं और इधर तमाम फरिश्तों का तज़किरा भी अल्लाह ने फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइका, मलाइका कहते हैं फरिश्ते को। तो जब अल्लाह ने यहाँ मलाइका का तज़किरा कर दिया कि इस रात के अंदर तमाम फरिश्ते भी उतरते हैं, फिर आगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तखस्सुस क्यों किया, खास तौर पे उनका तज़किरा किया क्यों किया, हालांकि वो भी तो फरिश्ते हैं। तो मेरे दोस्तों उलमा ने जवाब दिया है कि तमाम फरिश्तों के बाद हजरत जिब्रील का तज़किरा करना ये इस बात की अलामत है कि वो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, तमाम फरिश्तों के सदर हैं, इसलिए उनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। आगे फरमाया बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि अल्लाह के हुक्म से आते हैं और सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, और आकर के वो देखते हैं शब कद्र की रातों में जो लोग इबादत करते हैं, नफिल में मशगूल हैं, तरावीह में मशगूल हैं, कुरान की तिलावत में मशगूल हैं, तो आकर के वो सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, सलामुन अस्सलामु अलैकुम। यानी वो एक फरिश्ता होकर के जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, एक इंसान को आकर के सलाम कर रहा है। गौर करें कितनी बड़ी फजीलत है कि तमाम फरिश्तों का सरदार नबी की उम्मतियों को आकर के सलाम कर रहा है। और फरमाते हैं वो गुनाहगारों, अपने गुनाह की माफी मांगने वालों, वो अल्लाह से रोजी के तलाश करने वालों, वो अल्लाह के सामने अपनी गुनाहों की बख्शिश चाहने वालों, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सोचिए आगे है सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, और ये ऐलान उस वक्त तक होता रहता है जब तक कि तुलुए फज्र न हो जाए। सोचिए शब कद्र की इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी ज्यादा इसकी फजीलत है कि मेरे दोस्तों मैंने कुरान से इसका सबूत पेश किया, मैं हदीस से भी इसका तज़किरा पेश करता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरिही, रवाहु मुस्लिम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी आशरा में इबादत वगैरह और मुजाहिदा वगैरह में इस तरीके से मशगूल हो जाते जो दूसरी रातों के अंदर इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत नहीं करते। गौर करें हदीस जो हजरत आयशा फरमाती है। आइए मैं एक दूसरी हदीस हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजानुल मुबारक का आखिर आशरा अगर आ जाता और आखिर आशरा जब शुरू हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को कस लेते और शब बेदारी करते, यानी पूरी रात इबादत वगैरह में मशगूल रहते और जिक्र वगैरह करते। यही नहीं, आगे हदीस के अल्फाज पे गौर कीजिएगा। फरमाती है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, इस रात के अंदर हमारे साथ हमारे घर वाले भी जो है ये इबादत वगैरह से फारिग हो लें और इबादत वगैरह करें, इसलिए कि इतना अहम काम और इतनी अहम जो इबादत है इससे हम अपने घर वालों को कैसे महरूम रखें। अब मैंने कुरान से शब कद्र के बारे में बता दिया और आगे शब कद्र के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का भी मैंने तज़किरा कर दिया। अब सवाल ये उठता है शब कद्र होता कब है ताकि हम उसको ढूंढें और इसकी इबादत करें। तो मेरे दोस्तों हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की ही मैं एक हदीस नकल करता हूँ। फरमाती हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहर्रौ लैलतल क़द्री
फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिरी मिन रमजान। बुखारी के अंदर ये हदीसें फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे कद्र को तलाश करो तो रमजान की आखिरी 10 रातों में से ताक रातों में। ये हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी हजरत आयशा फरमाती हैं। क्या मतलब हुआ कि रमजानुल मुबारक के जो आखिरी आशरा है इनकी ताक रातों में तुम तलाश करो। मसलन इसका मकसद ये है कि ताक रात 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, यानी रमजानुल मुबारक के अरबी महीने के रमजानुल मुबारक के महीने के तबार से, अरबी कैलेंडर के तबार से रमजानुल मुबारक के 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात को अंदर तलाश करो। इन रातों में अगर तलाश करते हो तो तुम्हें मिल जाएगा शब कद्र। आगे मैं एक चीज और बताऊं। अब सवाल तो ये उठा कि यहां पर पूरा खुल करके वाजे नहीं हुआ कि किन रातों के अंदर है, लेकिन पता ये चला कि रमजानुल मुबारक के आखिर आशरे के अंदर ये शब कद्र मिल जाती है। एक सहाबी हैं, वो हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आप ये तो बताइए, आपके जो भाई हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला, उनसे सवाल किया गया शब कद्र कब है या किस रात को होती है, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था पूरे साल की रातों में अगर इबादत करोगे तो शब कद्र को पा जाओ। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह रहम करे अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला पर कि उनको ये बात मालूम है कि रमजानुल मुबारक के आखिर आशरा की ताक रातों के अंदर शब कद्र होती है, लेकिन उन्होंने इसलिए ये जवाब बता दिया ताकि लोग सिर्फ उन रातों पर इक्तिफा करके और पूरे साल की इबादत को न छोड़ दें। गोया कि उनको मालूम था। तो आगे मेरे दोस्तों, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो यकीनी तौर पे कहते हैं कि मैं यकीन के साथ कहता हूं और कसम खा करके कहता हूं कि शब कद्र जो है रमजानुल मुबारक के आखिर आशरे में 27वीं रात को होती है। इस पर उन्होंने, एक साहबी ने सवाल किया, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि शब कद्र जो है 27वीं रात को होती है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी बताई थी, और वो निशानी ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात को शब कद्र होगी और उसका जो अगला दिन होगा, जो सूरज निकलेगा, उस सूरज की शुआएं और किरणें नहीं होगी, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बताई है। अब आगे एक चीज बता के अपनी बात खत्म करने जाता हूं। कुर्बान जाइए हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ करके ये चीज़ों को बाहर आवाम के सामने पेश किया। आखिर फरमाती है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि अगर किसी को शब कद्र मालूम हो जाए कि आज ही के रात में शब कद्र है तो कौन सी दुआ मांगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शब कद्र मालूम हो जाए तो उसमें दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अब आप सोचें कि हर आदमी तलाश करता है, जब इतनी फजीलत मालूम हो जाती है तो तलाश करता है शब कद्र की कौन सी रात है और कौन सी रात नहीं है। तो मैंने आप हज़रात के सामने इसको पेश किया, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ आवाम को और लोगों को, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर रात की और दिन की कदर कर लें और अगर वक्त की कदर कर लें तो मेरे दोस्तों हर रात शब कद्र है। किसी शायर ने कहा है, पहचान शब कद्र की क्या पूछते हो तुम, पहचान शब कद्र की क्या पूछते हो तुम, हर रात शब कद्र है अगर कद्र करो तुम।